Now we'll study about transportation in plants. Transportation in plants. We have discussed about animals that blood help to transport food, oxygen, waste, carbon dioxide from each and every cell of the body. Now, how do transportation take place in plant? We already know about how is carbon dioxide exchange, how is carbon dioxide exchange through leaves, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के थ्रू कैसे एक्सचेंज होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू स्टोमाटल पोर्स present on the surface of the leaf. Okay, now how would we transfer, how would we transport water and mineral and food for plant? So we have two type of tissue that are vascular tissue. These tissue are xylem and phloem. Xylem is unidirectional, सिर्फ रूट से स्टेम तक जाएगा, ऊपर से स्टेम से रूट तक नहीं जाएगा. इट इज़ बाईडायरेक्शनल, ये बाईडायरेक्शनल है. इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल. ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल. इट ओनली ट्रांसपोर्ट फूड. ओके, अब जाइलम के कौन से कंपोनेंट होते हैं जो मदद करते हैं? ये हमने 9th में स्टडी किया था. ट्राचिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. सेम टू सेम. सीव ट्यूब, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. इसमें मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे होंगे ट्राचिड और वेसल, और यहाँ पे होंगे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल. अब नाउ हाउ इज दिस वाटर एंड मिनरल इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड? अब वाटर और मिनरल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द सोइल. सो इट नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. जहाँ पे चाहिए, लीफ को खाना बनाने के लिए चाहिए ना, रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, वी ऑल्सो नो दैट most of the cell of the plant are dead. Most of the plant cells are dead. So they required less energy. उनका जो एनर्जी होता है ना, वो लेस होता है. So they can afford slow transportation system. So they can afford slow ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा स्लो होगा ना तो भी चलेगा, ताकि उनके ज़्यादातर सेल क्या होते हैं? डेड होते हैं. एंड डेड सेल डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस. नो मेंटेनेंस. हमारे चेयर को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि हमको ज़रूरत पड़ती है. डेड सेल को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं. ओके, नाउ हाउ डज दिस ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस? तो इट टेक प्लेस इन टू डिफरेंट ways. Okay, so it is difficult. Suppose a plant is small, suppose these are root and this is plant's aerial part. If the height of the plant is small, then it is not difficult to transport water and mineral from root to shoot or from root part to aerial part. But if it is like coconut tree, if it is like coconut tree, it will be difficult to transport this water and mineral from root to leaf. So there are mainly two processes. First one is diffusion. Actually it is known as osmosis, but in our textbook we are given diffusion, so we'll write diffusion. In diffusion is an gaseous exchange. Diffusion क्या होता है? Gaseous exchange होता है from high concentration to low concentration. And osmosis is water exchange from high concentration to low concentration. Okay, now suppose
this part is in the soil. This part which is above soil or above land, it is known as aerial part of the plant. It is known as aerial part of the plant. Now this is soil, okay. So suppose there are more water particle here compared to root hair. यहाँ पे ज़्यादा पानी है और यहाँ पे कम पानी है, तो यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा पानी. कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन से. कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन में. बट ये डिफ्यूजन प्रोसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ हाई प्लांट. जिसका हाइट ज़्यादा होता है ना, उसमें ये थोड़ा ट्रबल क्रिएट करता है. नाउ अनदर वे इन विच water is transported is known as transpiration pool. It is known as transpiration pool. अब what do you mean by transpiration pool? उसके पहले हमें ट्रांसपीरेशन समझना पड़ेगा. उसके पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन मतलब हम जैसे पानी खोते हैं पसीने के फॉर्म में, वैसे प्लांट भी पानी खोता है. द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, from aerial part of the plant is known as transpiration. Is known as transpiration. Okay. Now suppose this is our plant. These are its root. Okay. Now suppose this एक पत्ता लीफ है. Suppose it loses water. It loses water. इसने अपना पानी खो दिया. Then it will create a pool. It will create a suction pool. ये खींचेगा. ये पानी यहाँ से यहाँ पे और खींचेगा क्योंकि इसका पानी कम हो गया, तो ये सक्शन क्रिएट करेगा. जैसे मोटर कैसे सक्शन क्रिएट करती है पानी खींचने के लिए, सेम टू सेम ये सक्शन क्रिएट करेगा और इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पूल. इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पूल. बट इट विल ओनली टेक प्लेस व्हेन देयर इज सन और सनलाइट. ये तभी हो सकता है जब सनलाइट हो. क्यों? क्योंकि पानी प्लांट तभी लूज करेगा. सो ट्रांसपीरेशन पूल इज़ हेल्पफुल ड्यूरिंग डे. जब सनलाइट होगा ना तो प्लांट पानी लूज कर पाएगा. तो ये दिन के समय ये काम करेगा, लेकिन रात के समय हमें डिफ्यूजन का ही मदद लेना पड़ेगा क्योंकि रात के समय प्लांट पानी लूज करने वाले नहीं है. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. But it will only take place during daytime when there is sun.